students. Hello, everyone. Hello, ma'am. Good afternoon. Am I audible? Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Okay, 74 students have joined. We'll wait. Please switch off your microphone. अरे डैडी आवे છે. इसका माइक्रोफोन ऑन है. So students, today we'll finish out with the last point of our second unit, and that is the feedback. Okay, I request all of you, please, if possible, on your video. How are you all? Fine, ma'am. Good. How are you, ma'am? My voice is clear to you? Yes. Yes, ma'am. Okay. Is there any echo? Because I have logged in from two devices. That is why. No, ma'am. No, no. Clear na? There is no echo na? सभी पॉटी कर दोगे बड़े हो गए तो बड़े बच्चे पॉट Swati, please mute yourself. Mute yourself. मैम आपकी वॉइस इको में आ रही है. अभी आ रही है? नहीं मैम अब नहीं आ रही. नहीं मैम. Raise the hand. Hand raise किसने किया? चुडासमा. मैम वो गलती से हो गया. मैम गलती से हो गया. Okay. You are exploring कर रहे हो डिवाइस को? मैम मैं वीडियो टर्न ऑन करने की ट्राई कर रही थी पर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा इसीलिए. ये ऐसे ये वीडियो जैसा ऑप्शन होगा ना ऐसे? क्या मैम म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है उसके बाजू में ही लोगों को वीडियो वाला ऑप्शन देते पर आई डोंट नो मेरे फोन में क्यों नहीं आ रहा. ओके. एक बार बाहर निकल के वापस से ज्वाइंट हो जाओ. So let's begin. Yes, ma'am. यस मैम. मैं download the attendance sheet. So our last point is feedback. है ना? And this is not the new word for you all. We all know that how to give the feedback. Actually, we are doing these things in our day-to-day life. So what is your understanding as a feedback? We have seen so many things in Unit 2. So now try to relate the very important components, that is the feedback, because in my every class I have repeated this thing that when we talk about the assessment for learning, we have to focus on the feedback. That is the main mechanism through which we can improve the performance or the learning of our students. So now you try to relate that things with the assessment and give your opinion. What do you mean by the feedback? Whatever comes in your mind.
रिव्यू। सोनी कौन सोनी? सोनिका मैम। हाँ सोनिका। सोनिका। रिव्यू, बट हाँ, व्हाट डज दिस रिव्यू मीन्स? सोनिका मैम जैसे बोलते हैं ना कि मूवी कैसी थी हम देख के आए तो उसको रिव्यू करते हैं, या फिर कोई बुक पढ़ी हमने तो हम उसका रिव्यू देते हैं कि ऐसी थी। ओके, तो रिव्यू अपने तक रखेंगे और वी विल गिव इट टू समवन, क्योंकि दोनों तरीका होता है ना। यस मैम। See, I have seen one movie. There are some points in my mind. I may not share with anyone else. है कि नहीं? यस। Okay. So what is the review and feedback is the same? No, ma'am. Okay. Then what is feedback? May I? May I, ma'am? Yes. Khush. Ma'am, basically feedback is a very essential part of a communication system, and it is basically defined as when we transfer something to a receiver, and feedback is when receiver tell us, okay, whatever you have transferred, I have properly grasp that message. So Okay. that is feedback. Okay. The receiver which gives Khush, you us. are very right. You are right. When we talk about the communication, है ना? There the feedback is very important part. है ना? Whatever the message we have given, we can consider that yes, there is a communication in a teaching learning process also. Teaching learning. है ना? हाँ, it is not only one way. Is it the one way process? Teaching learning is No, ma'am. It is a two-way process. it is also the two-way process. है ना? And teacher always every day he or she is communicate with his or her students either in the classroom or outside the classroom. है ना? So you have that idea that when we talk about the communication, yes, there is a feedback, है ना? But यहाँ पे we are assessing the performance of the students, and then after we are giving them the feedback, है ना? Actually, every teacher, he or she is doing that thing in their day-to-day teaching learning process always, है ना? You recall your days in the school. You might have also received the feedback from your teacher, either in the form of oral feedback or in a written form. मिली थी आपको कभी feedback? Yes, ma'am. Kind of remark. है ना? Okay. Regarding the marks, क्या feedback मिलती थी? Improve. Ma'am, it can be very good या फिर improve, Good, needs very improvement, good. can do better. या फिर कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? तो can do better. कहाँ पे लैग कर रहे थे? Okay. तो अगर आप if you recall your days of school, you might find that some of the teacher used to give the feedback through their day-to-day teaching. है ना? Basically जैसे कि when the account teacher is teaching or commerce like the mathematics teacher are teaching, and when they are giving some problem and let the students to do on their own, and they are getting the round in the class whether their students are solving that problem or not, है ना? So recall that many a times बहुत सारे टीचर, कुछ टीचर क्या करते हैं, देख के चले जाते हैं, as they just perform as a duty. Many टीचर क्या करते हैं, जब वो when they are observing that student are doing the and solving the problem, and when they say that when they see that कि he or she is doing mistake in performing particular steps of that problem, है ना? So immediately टीचर बोलता है कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना चाहिए था. Yes or no? तो ये भी क्या हुआ? फीडबैक हुआ, है ना? दैट असेसमेंट, हाँ, वो असेसमेंट भी क्या हुआ? फॉर्मल असेसमेंट हुआ, है ना? जैसे कि व्हेन आई टीच हाउ टू पास द जर्नल एंट्री इन माय क्लासरूम, है ना? जर्नल एंट्री 11th 12th में अकाउंट में पास की जाती है, ठीक है? तो पहली बार आती है, तो आई विल लाइक माई सेल्फ विल लाइक solve so many problems and pass the general entry. तो पहले क्लास में मैं खुद करूंगी. In the next class,
obviously account teacher will assign some transaction to the students, and then they ask the student to solve that things on their own. Wait. And then teacher is also echo आ echo रहा आ है। रहा है ना? Wait. हाँ मैम। Wait. I got it. echo आ रहा है। अभी मैम सेकंड डिवाइस को अभी भी आ रहा अभी आया echo? है। नो मैम। अभी फोन आया ना? नहीं मैम अभी नहीं आ रहा। अभी आ रहा है echo? नो मैम। Is there any no na? Okay. So what he or she is doing, जैसे कि मैं एक क्लास में मैंने जनरल एंट्री पास करना सिखा दिया, दूसरे क्लास में I will give them 10 or 15 transaction and I ask my student, you pass the journal entry on your own, and when they are passing the journal entry I make sure whether they are doing properly or not. So for each transaction I will check the task which I have assigned to my students, and if they are doing the mistake, not only I will not only say that कि ये गलत है, but I will correct them कि when they are passing the general entry तो उन्होंने कोई गलत डेबिट क्रेडिट तो नहीं कर दिया है ना. Even at that time when they are doing wrong thing, I will ask that which account it is it personal account, it is nominal account, or it is real account. So I'll check that, because जर्नल एंट्री में मिस्टेक आ रही है, दैट मींस उनको ये 3 अकाउंट समझ में मिस्टेक आ रही है. इफ दे आर गिविंग द राइट आंसर आई विल अगेन चेक, देन टेल मी व्हाट इज द डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. सो आई कैन एग्जैक्टली locate where my student is lacking, and by this way I can give the feedback to my students. So such kind of feedback actually help the students to perform and to learn better. ना, many teachers are doing these things many a times long back, है ना. कुछ टीचर बहुत सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, होमवर्क दे दिया and they least bother whether their students have done the homework properly or not. है ना, they least bother. Actually we have seen in our formative assessment that giving homework is also one kind of assessment, है ना. हमने वो देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट में, गिविंग होमवर्क, गिविंग प्रैक्टिकल वर्क, गिविंग असाइनमेंट. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द टीचर टू चेक ऑल दिस थिंग्स, बट मेनी टीचर्स आर नॉट डूइंग दिस, है ना. एंड दैट इज व्हाई जब हम बात करते हैं ना असेस फॉर लर्निंग की, तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट द फीडबैक, दैट व्हेन यू assess your students whether in a formative assessment or whether in a summative assessment, it's the duty of the teacher to provide them the feedback, है ना, feedback about their performance in the assessment or performance in the task which is assigned by the teacher, performance in the activity. जैसे कि हम बहुत सारे formative assessment through activity करते हैं. We form a group, we divide the student in a group and we ask them to let's do this activity. And when they are doing in a group, we are observing and giving continuously, we are giving the feedback. So whatever the task is assigned by them, whatever the assignment is assigned by them, whatever the assessment is done by the teacher, it's the duty of the teacher to give a feedback. So that is why then only you can facilitate the student for further learning. Otherwise you won't be in a position, अगर आप उनको अपना आईना नहीं दिखाओगे कि where they are lacking, simply मैं ये बोल दूं कि भाई खुश तुझे ये नहीं आता है, ठीक है, अभी मैंने तो बोल दिया, ये फीडबैक दे दिए. अब बच्चा सोचता रह जाता है कि मुझे क्या नहीं आता था, कहाँ पे मेरी गलती थी, है ना. तो टीचर क्या करते, दे आर नॉट गिविंग, वो सिंपली बोल देते. अभी आपने बोला ना ग्रेड आते हैं तो गुड, वेरी गुड, है ना, नीड इम्प्रूवमेंट, बट कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दी फीडबैक. तो ज्यादातर फीडबैक हमने टाइप्स देखे, मैंने जो ये जितना भी डिस्कशन किया
किस टाइप की फीडबैक दी जाती है? मैं बोल Orally. भी दी मेरे टीचर, ओरल, ओके, ओनली ओरल फीडबैक, ओरल और रिटर्न दोनों होती है मैम। Written. यस, रिटर्न भी होती है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट रिटर्न फीडबैक इज आल्सो गिवन बाय द टीचर? Yes, ma'am. Can Yes, anyone Yes, ma'am. share your experience with the class? मैम अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए तो पेपर में एक्सीलेंट, वेरी गुड या 3 स्टार्स मिलते हैं, तो वो भी एक Okay. फीडबैक ही है। Yes. और मैम एक और एग्जांपल है, अगर सोशल मीडिया में मैंने एफबी पे कोई अभी पोस्ट डाली और कमेंट्स आते हैं तो वो भी तो एक फीडबैक ही होगी। हाँ, लेकिन वो किसके लिए है? That is not the learning part. यस मैम। Ma'am, वो फीडबैक वो Ma'am, learning part may I नहीं है, स्पेशल मरियम, वो हम देते हैं, लेकिन वो क्या होता है और फीडबैक क्या होता है? लर्निंग के लिए नहीं होता है ना। जब लर्निंग की बात, यस यू सेड दैट स्टार मैम देते मैं हैं ना, पूछ रही हूँ कि observe. आएगा वो। मैम वो मैम पूछ फीडबैक रही लर्निंग के लिए नहीं आएगा मरियम, ओके। है ना। बट जैसे कि आई एम यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर माई लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। एंड आई आस्क माई स्टूडेंट्स, लाइक जैसे कि अभी ये जो कोविड-19 चल रहा है, तो मैनी टीचर्स आस्क द स्टूडेंट टू प्रिपेयर द वीडियो एंड पोस्ट ऑन द एफबी, एंड देयर द टीचर इज गिविंग द फीडबैक, तो वो रिटर्न फीडबैक हुआ। बट यस मरियम, एज यू सेड दैट जब एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो मैनी अ टाइम टीचर ने एक्सेलेंट लिखा होता है, गुड लिखा होता है या स्टार लिखा होता है, दैट्स ऑल्सो, बट दैट इज when the performance is good. What about the students who are taking in the performance? वहां पे आपने कभी देखा है कि रिटर्न फीडबैक टीचर्स देते हैं? वर्क हार्ड टीचर करके जहाँ देते पे हैं मैम। मिस्टेक वर्क होती है हार्ड। वहाँ पे Yes, सर्कल कर ma'am, they देते हैं give. पेन से और फिर वहाँ पे Yes, लिखते हैं Ma'am, ये करेक्ट handwriting करो। के related वन भी. बाय वन, जो बोल रहा है ना सर्कल कर लेते हैं, कौन? आई थिंक शुक्ला, प्रीति मैम। आर यू टॉकिंग अबाउट प्रीति? हाँ प्रीति प्रीति बोलो। मैम। हाँ मैम, मतलब कुछ भी हमारी मिस्टेक होती है ये वाली लाइन में या वर्ड में, तो मैम लोग रेड पेन से मार्क कर देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं कि इसको करेक्ट करो, इसमें ये प्रॉब्लम है। ओके ओके, वेरी करेक्ट। Many teachers are using this. Share my experience. वेट, हाँ पहले मुझे ये खुशी का जो आंसर, प्रीति का जो आंसर है उसको एलोबरेट करने दो। सी इज करेक्ट। यस Many teachers क्या करते हैं, जैसे कि you might have observed, actually these things are done in the primary. आपने ध्यान से देखा होगा, टीचर आर कलेक्टिंग हाँ, yes, नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो मेनली व्हेन जब वो राइटिंग में मिस्टेक किया है तो वहां एंड सर्कल करके राइट आंसर लिखते हैं, तो बच्चा एग्जैक्टली कैन कम टू नो कि मेरा यहाँ पे गलती हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है हमारी सिस्टम का, प्राइमरी तक ये सब होता है, जैसे ही बच्चा सेकेंडरी में आ जाता है टीचर नहीं करते हैं। लेकिन नहीं मैम, learning मेरे process- 11th 12th में स्टेट्स में फॉर्मूला में प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी होता था, सर लोग वही करते थे। दे यूज्ड टू मार्क good. वेयर आई एम रॉन्ग। yes, वो होना चाहिए। बट आप मेजोरिटी, इफ वी सी द रियलिटी इन मैनी schools, teachers are not used to do this thing, है ना, at higher grade. बट उनको वो करना चाहिए, एंड दोज टीचर हु आर डूइंग दिस थिंग्स, दैट्स द बेस्ट थिंग। और इसीलिए पहले से बहुत सारे टीचर ऐसा करते भी थे जब ये फॉर्मेटिव ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं था। बट जो 5-6 साल से मैंने बोल रही हूँ ना कि ये न्यू कंसेप्ट आया है, नाउ द टीचर आर कंपेल्ड टू डू दिस थिंग, है ना। यस, ऑल्सो समवन वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। मैंने उनको बोला था लेट मी एक्सप्लेन दी प्रीति वाला Yes, एग्जांपल ma'am. एंड you. Subhita, Ma'am, this is Shobita here. Ma'am, you're Subhita. one of my teacher, while Mhm. I was presenting a presentation, he Yes. after completion of the presentation, he gave me a piece of paper in which he wrote that in slide particular improvement was needed. So that kind of Yes. feedback he Yes. had given me, That is that the- specific. Yes, Yes. very correct, है ना। So feedback is very important. Now you come to know कि आप वो समझ में आ गया है कि फीडबैक कैसे दिया जाता है ना। तो सिंपली हम ये बोल देंगे गुड, Ma'am. एक्सेलेंट, यस, खुश,
मैम बच्चा भी तो फीडबैक देता है ना, जैसे कि आपने वो फर्स्ट जो एग्जांपल दिया कि टीचर जो है एक कोई सम जो है सॉल्व करने को देता है, फिर क्लास में घूमता है एंड देन ही एनालाइज कि अच्छा किसने कैसे सॉल्व किया है। तो बाय दैट जब वो बच्चा सॉल्व कर रहा होता है तो वो भी जो है एक फीडबैक ही दे रहा है ना अपनी ओर से, इनडायरेक्टली, नॉट ओरली, नॉट या रिटन कह सकते हैं। किसको किसको टीचर फीडबैक दे को रहा है खुश? टीचर को About what? अनइंटेंशनली, जैसे कि उसको About what? टीचर ने जो है, हाँ टीचर ने जो सम जो है सिखाया है, ठीक है, तो वो उसको कितना समझ में आया है, तो वो सॉल्व करेगा उसको, ठीक है, और तब उसको जो है टीचर को पता चलेगा अच्छा इस बच्चे को इतना आता है, इस बच्चे को इतना आ रहा है, तो वो जो है स्टूडेंट भी जो है इनडायरेक्टली जो है फीडबैक दे रहे हैं टीचर को इन द क्लास, ऐसा कह सकते हैं ना? Kush, what you are trying to convey, that you have already learned in unit 1 कि how the assessment is going to help the teacher to find out the strength and weaknesses, है ना? तो यहाँ पे फीडबैक की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या फीडबैक है कि वो इनडायरेक्टली फीडबैक, आई डोंट नो कि वो उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि फीडबैक जब होता है बच्चा खुद का जब सेल्फ असेसमेंट करता है तब खुद पता चलता है उनको। दूसरा, जब हम पीयर असेसमेंट करवाते हैं तो पीयर्स आर आल्सो गिविंग देम द फीडबैक। मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ वीडियो, है ना? एंड ये जो फीडबैक की बात हो रही है, जैसे कि I have checked the papers of my students, है ना? कई बार टीचर सिर्फ गलत कर देते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि गलत क्यों है। तो जैसे कि अभी सुबिता ने बोला, प्रीति ने बोला कि many teachers are used to do कि जब वो गलत करते हैं ना तो साथ में उसको एंड सर्कल करके वहीं पे सही लिखते हैं कि ये ऐसे लिखा जाता है, तो वो फीडबैक हुआ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फीडबैक, है ना? ओरली तो देते ही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू दैट फीडबैक इज रिगार्डिंग द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, how much they have understand, where they are lacking, and not only their limitation. Feedback is also given for their strength, that this is your strength, है ना? So that feedback is related to the learning of the students, or whether this learning is academic learning or social, like जैसे कि हम उनको ग्रुप एक्टिविटी देते हैं, तो our purpose is not only that they learn academic, but our purpose is that they also learn how to adjust in the group, है ना? जब हम एक्टिविटी देते हैं, that our purpose is that their psychomotor, है ना, their physics should be developed, physical development होना चाहिए ना everywhere, because in the very first unit you have seen that our education is not only limited to the development of cognitive aspect, but we are supposed to develop the holistic development of the student. So teacher is supposed to give the feedback regarding this holistic development, and for that they are doing the assessment, whether the formative assessment or whether the summative assessment. So the only thing is that whatever you have observed as a teacher, है ना, आप जब चेक करते हो आपको पता चलता है बच्चे का ये गलती है, तो दैट्स एट द सेम टाइम टीचर इज सपोज्ड टू कन्वे the weaknesses and the strength of the student in the form of feedback. Now this feedback can be written feedback and oral feedback. Oral feedback mainly कब आता है? Yes, wait, let me explain this point. Oral feedback mainly कब आता है? When we are doing formative assessment, day to day activity, like day to day questioning करते हैं, है ना, तब भी हम फीडबैक देते हैं। If you have kindly observed my class, I have assigned one task. क्या टास्क दिया था आपको? You are supposed to prepare the checklist, है ना, and many of students have done it, and I really appreciate their effort. But simply me and Sonia ma'am have just simply said that correct है, ये नहीं, ऐसा ही बोला था। What we did? नहीं मैम, No, ma'am. एक्सप्लेन किया था। It describes clearly, ma'am. At some point where we have
etc. हाँ, so we just said that जैसे कि एक स्टूडेंट से I forget her or his name बहुत अच्छा बनाया था अकाउंट में, but that was the rubric और मैंने उसको इस वक्त बोला था you prepare well, but this is not the checklist, this is the rubric. rubric. है ना? So वो क्या था? That was the feedback. है ना? जो मैंने दिया था, जो सोनिया मैम ने दिया था, वो क्या था? फीडबैक था. तो सिंपली हमने ये नहीं बोला था कि आपने सही किया या गलत किया. We gave the example for how to correct that things. है ना? सोनिया मैम ने भी मैथ्स का एग्जाम्पल दिया था. लैब का एक एग्जाम्पल, किसी ने लैब वाला चेकलिस्ट बनाया था, मैम ने उसको एलोबरेट किया था. ठीक है? तो वो क्या था? The whole session was feedback. वो असेसमेंट किस वेट मरियम, वो असेसमेंट किस टाइप का था? फॉर्मेटिव और समेटिव? फॉर्मेटिव वेरी करेक्ट, फॉर्मेटिव था, है ना? और उसके ऊपर फीडबैक मिला था. यस मरियम. मैम गलती से हो गया था. तो कोई मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी, कोई बोलना चाहता था? यस मैम, रिंकी शुक्ला. लोअर डाउन योर हैंड मरियम. यस रिंकी. मैम, ये जो क्वेश्चन ने बोला कि जब बच्चा आंसर या सॉल्यूशन लिखता है, देन वो कहाँ तक पहुंच रहा है उस सॉल्यूशन में, वो टीचर के लिए फीडबैक होगा ना मैम, क्योंकि वो लर्निंग अपने मतलब जो टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहा है, वो वहां पे जाके वो चेंज कर सकता है उस फीडबैक से. तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक नहीं हुआ फॉर टीचर? वो इम्प्रूवमेंट के लिए हुआ, वो इम्प्रूवमेंट के लिए हुआ. बट जैसे कि आपके क्लास के 30 स्टूडेंट है, ठीक है रिंकी, और yes, उसमें से सिर्फ 1 स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, तो डू आई नीड टू चेंज माय लर्निंग एक्सपीरियंस? नो मैम. है ना? तो ये फीडबैक 2 वे होता है, और इसीलिए हमने जब असेसमेंट फॉर लर्निंग देखा था, ये आप बहुत पहले यूनिट 1 में सीख ही गए हो कि जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, टीचर देमसेल्फ which they have provided, है ना, through the result only, तो वो तो उनको मिलता ही है. रिंकी, आप देख लिया ना यूनिट 1 में, आपको सोनिया मैम ने पढ़ाया होगा the uses of the evaluation. yes मैम, उन्होंने बताया था. हाँ, तो at that time uses for the teacher मैम ने पढ़ाया होगा, उसमें मैम ने ये एक्सप्लेन किया होगा, है ना? और इसीलिए मैं उसको पूछ रही थी कि in what context you are telling that कि they are getting also the feedback indirect. Okay. Here so, I'm talking about the feedback. Here I'm talking about the feedback for the learning of the students. Okay, ma'am. Learning. Someone mute yourself. हम feedback की बात कर रहे हैं. किसका ऑन है? पटेल प्राची. ठीक है. क्लियर रिंकी? Is your doubt is clear? Yes ma'am. Okay. Mariam, still you have question or else you lower down your hand? मैम मेरे से नहीं हो रहा है. I tried it but I don't know, something happened by itself only. What should I do now? Okay. ठीक है. So now you understand that feedback, and mainly 2 type of feedback is given, written feedback and oral feedback. अब ये दोनों फीडबैक में और एक टाइप ऐड होता है, that is affirmative feedback. Affirmative feedback and developmental feedback. जो आपने बोला ना, teachers are used to give the affirmative feedback, है ना, जो आप बोल रहे हो, good, very good, needs improvement, है ना, these are such kind of information come in affirmative feedback, which can be given either orally or even in the written form. What this teacher is need to develop, that is to give the developmental feedback.
you might have experienced these things in your school days. जैसे कि आप कोई if you are doing the one kind of drawing और आपके ड्राइंग के टीचर बोल रहे हैं इसको ऐसे नहीं, ये लाइन ऐसे लो, तो आपका ड्राइंग अच्छा दिखेगा. ठीक है, तो वो किस टाइप का फीडबैक हुआ? डेवलपमेंटल फीडबैक, है ना. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लैब, आपके टीचर आके बोलते हैं इसको इतना मेजर नहीं, इतना मेजर लो, आपका ये सही नहीं जा रहा है, उसको ये ऐसे रखो तो आपका अच्छा बनेगा. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ फीडबैक इज डेवलपमेंटल फीडबैक, and these feedback can also be given in written form and in a oral form. ठीक है, so developmental feedback plays a major role. कि जैसे कि बच्चा का if I give the example of language teacher, when he or she is taking the test of speaking test ले रही है ना, and वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बच्चा बोल रहा है स्पीकिंग में ज्यादातर उसके प्रोनाउंसिएशन ढंग से जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोनाउंसिएशन है जिसपे उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. अब सिंपली टीचर ये बोल दे यू डिड अ वेल बट स्टिल यू नीड द इम्प्रूवमेंट, ये कैसा फीडबैक हुआ? अफर्मेटिव, है ना. उसके साथ टीचर ये बोले कि व्हेन यू हैव प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड यू वाज मेकिंग द मिस्टेक. Rather than pronouncing this word in this way, you need to pronounce it like this. ये किस टाइप का फीडबैक हुआ? डेवलपमेंट. डेवलपमेंटल फीडबैक, है ना. So student needs both kind of feedback. See, when you are asking the question in your classroom and you come to know that आपके कुछ बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, you need to give good, very good, है ना. अगर उन्होंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो वहां पे आप लिखो एक्सेलेंट, जैसे कि अभी मरियम बोले कि स्टार देते थे, जैसे ना केजी एंड प्राइमरी टीचर्स आर यूज्ड टू डू दिस, है ना. 5 स्टार देते हैं, 3 स्टार देते हैं, एंड दैट स्टार मैटर्स अ लॉट फॉर द चाइल्ड, है ना. तो दिस थिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 12th grade. Even you people also need the feedback. Even I also need this feedback. If I do the good job, है ना, तो everyone expect, this is the human nature, है ना. So हमको affirmative feedback तो देना ही है, साथ में डेवलपमेंटल फीडबैक भी देना है. जैसे कि you might have observed कि बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि ये आपने ऐसे नहीं ऐसे कर, आपका ये you needs improvement, बट कैसे इम्प्रूव करना है वो नहीं बताएंगे, तो टीचर के वो बच्चा कैसे इम्प्रूव कर पाएगा? जैसे कि ड्राइंग टास्क दिया टीचर ने, है ना, बच्चे ड्राइंग परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर सिर्फ इतना बोलेगा आपका ड्राइंग अभी सुधारने की जरूरत है, ये भी तो फीडबैक हुआ. लेकिन बच्चा सोचता रह जाएगा वेयर आई नीड टू, मेरा कौन सा गलत हो रहा है. जैसे कि उन्होंने कुछ माउंटेन ढंग से नहीं दौड़ा है तो वो बोल सकते हैं कि माउंटेन का पीक आपने ऐसे बनाया, उसको थोड़ा यहाँ से कर्वी करो, है ना. आपने जो ट्री बनाया है उसका स्टेम इतना बड़ा नहीं, थोड़ा उसको नैरो डाउन करो, है ना. ट्री के लीव्स आपने ऐसे बनाए, उसको ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे से करो. ट्री में आपने ये कलर डाला है, ये कलर नहीं, ये कलर डालोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा. तो सच काइंड ऑफ फीडबैक क्या है? डेवलपमेंटल फीडबैक है, एंड टीचर नीड टू दिस फीडबैक. क्लियर? तो कितने टाइप की फीडबैक होनी चाहिए? मेन टाइप क्या है फीडबैक के? 2 types. Oral and written. What other type I have explained? Affirmative feedback and developmental feedback, which can be given in a written form also and in oral form. And it is not like that when you are doing the formative assessment then only you are supposed to give the feedback. It's not like that. Even we expect that कि आप उनको summative assessment करते हो ना, तब भी उसको feedback दो. And that is why we
पिंकी आस्क मी वन क्वेश्चन, बहुत हमारे सेकंड क्लास में उसने पूछा था कि हम उनको बच्चों को अपर ग्रेड में भेज देते हैं, है ना, तो वहाँ सर्टिफिकेशन, बिकॉज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ summative assessment? To giving the grade, to promote the student for the next grade and to give the certificate. But that time also I said that ki teacher need to use that formative assessment, formative use of summative assessment, है ना। जैसे कि 8th क्लास का रिजल्ट आ गया, बच्चा जब 9वीं क्लास में जा रहे हैं, तब वो रिजल्ट के आधार पे टीचर उनको फीडबैक दे सकती है, देना ही चाहिए, ठीक है। दो द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रेड, बट नॉट ओनली ग्रेड, it is expected that teacher utilize the result of summative assessment in a formative way, so the student can do the better performance in the next grade. Clear up to this? मैम At वो least a लास्ट year. वाला आपने जो बताया, समेटिव असेसमेंट इन अ फॉर्मेटिव वे। हाँ, see, हमने formative assessment and summative assessment देखा. What's the basic difference between these two? Formative assessment is developmental in nature, whereas summative assessment is judgmental in nature. हम जज कर लेते हैं बच्चे कहाँ पे है ना। ये जैसे कि एवरेज स्टूडेंट है, ये अबो एवरेज है, ये थोड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन उसका भी अगर फॉर्मेटिव वे में यूज हो, वो रिजल्ट का भी, अब टीचर आप देखो कि 8वीं क्लास का टीचर है, वो 9वीं क्लास में भी क्लासेस लेते हैं, है ना, और हम वो प्रोफाइल भी मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल, हमने टूल्स भी देखा, स्टूडेंट्स प्रोफाइल शुड बी, सो on the basis of the result of the summative assessment, teacher need to write that feedback that ये बच्चे का ये है वो है, so the next teacher can take a step. और जैसे कि हमारा मिड सेमेस्टर का रिजल्ट है, उसके आधार पे हम अगला सेमेस्टर पे उस पे वर्कआउट कर सके। क्लियर खुश? So it is expected. यस मैम, मतलब के फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव असेसमेंट। नहीं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव यूज ऑफ समेटिव असेसमेंट। क्लियर? यस मैम। Okay, so feedback is very important component of formative assessment. वो तो होना ही चाहिए, but it is not like that we cannot give the feedback in summative assessment. Teacher can give the feedback, and that is the constructive feedback in even the summative assessment also. Clear? बट समेटिव का मेन पर्पस नहीं है फीडबैक देने का, उसका मेन पर्पस क्या है? ग्रेड देने का है। बट जैसे कि बाई प्रोडक्ट नहीं आती है, हम दूध में से मक्खन में से घी बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या निकलती है? और बटर मिल्क निकलता है ना। मलाई। हाँ मलाई। Yes, ma'am. अरे मलाई में से बनाते हैं मक्खन, मक्खन में से बनता है घी। मैम ठीक है? बगरी जो लेकिन बोलता है गुजरात। हाँ, और उसको भी वेस्ट नहीं करते हैं हम तो, है ना। मिठाई तो वो बना है। सकते हैं उसमें से। दो Milk cake बना सकते दी हैं। पर्पस ऑफ हाँ, सो दो दी पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? ग्रेडिंग है, बच्चों को हम ग्रेड Certification देते के हैं, लिए। सर्टिफिकेट देना है, उनको प्रमोट करना है। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हम फीडबैक नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल फॉर अ टीचर टू यूज द रिजल्ट ऑफ द समेटिव assessment in a formative way, so there can always be a scope for a student to develop. ठीक है, so now it's clear, feedback होना चाहिए। How many types of feedback? Mainly 2 types. उसके अंदर है भी affirmative feedback and developmental feedback. Let me show you one video.
Let me show you one video. I'm sharing my screen. Wait. There is problem. Wait. Wait, my screen is stuck. Wait. Wait, I have to check. Able? Now? So, Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, you are not audible. Yes, ma'am. She is on a call. She maybe कॉल पर है वो. हाँ, एक्चुअली मैम बात कर रही थी तो मुझे लगा नेटवर्क चल रहा है. अरे नहीं, ईयर प्लग लगा इसलिए. hello, I'm joining. Wait. मैं सुनाई दे रही हूँ ना अभी आपको? हाँ मैम. Yes, ma'am. Yes, मैम. क्यों नहीं आ रहा है?
Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any echo? No, Because I ma'am. No, ma'am. reconnected. That is why. No, ma'am. Okay. So now I'm sharing my screen. Wait for a minute, huh, dear? Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. See, this is one feedback which is given by the teacher, है ना? मैं बाद में आपको explain करती हूँ. First listen the feedback. Wait, volume नहीं आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. Wait. मेरे डिवाइस में वॉल्यूम फुल है. नहीं आ रही है? मैम, आपका जो नहीं आ ईयरफोन रही है लगाया मैम। हुआ है ना उसकी नहीं, वजह मैम। से नहीं आएगा। कोई एक No, बोलो. ma'am. ईयरफोन लगाए हुए हैं ना आपने उसकी वजह से नहीं आएगा। निकाल दो ये. माइक्रोफोन एक जगह ही एक जगह ही यूज होगा ना माइक्रोफोन, या तो आपकी वॉइस आएगी या तो Wait. लैपटॉप के स्पीकर के आएंगे। हाँ, wait. I got it. अभी आ रही है? हाँ, मैम। अभी आया वॉल्यूम? बहुत लो है वॉल्यूम मैम। नहीं मैम, लो है वॉइस। वॉल्यूम इज टू फुल लो। रखा है. 100% है वॉल्यूम. बट मैम ऑडिबल नहीं है। लैपटॉप का एक बार देखो ना। लैपटॉप से ही है. मोबाइल से तो ये वाला स्क्रीन चल रहा है. Okay, I think this will not work. Ma'am, ऐसा है तो you can summarize the communication directly. The whole communication is regarding the thing which is going now in a B.Ed. I told you earlier also that we are using or practicing these things long before. And when the students are giving the lessons, the same time teacher gives the feedback, peer assessment भी होता है. So feedback जो होता है वो दोनों फॉर्म में होता है. रिटर्न फॉर्म में भी होता है और ओरल फॉर्म में भी होता है. You might experience these things in a second semester. When you come to the second semester and when your exact or simulation will going on, तो वहां पे जब बच्चा 10 या 15 मिनट का लेसन देता है, the whole lesson is observed by the supervisor, that is the teacher, then the peers also. उनका जो फ्रेंड है वो भी उसको ऑब्जर्व करता है. Immediately after the lesson is completed, the peer will give the feedback. मैं अभी आपको जो दिखा रही थी वो पीयर फीडबैक था, है ना? बट उसको पीयर फीडबैक भी नहीं बोल सकते, बट दैट द एमएड स्टूडेंट हु इज गिविंग द फीडबैक टू द बीएड स्टूडेंट. तो सीनियर टीचर आप बोल सकते हो, उनका सीनियर पीयर्स उनको फीडबैक दे रहा था, है ना? सो दे आर गिविंग द फीडबैक इन रिटर्न ऑल्सो एंड इन अ ओरल ऑल्सो. तो जहाँ पे अगर थोड़ा भी सुनाई दिया हो तो उसने ये बोला कि यू हैव यूटिलाइज अ पीपीटी, your PPT was nicely present. साथ में ये बोलती है why it is nicely present, because you have
included the pictures in it which is related to content. Not only that, you have highlighted the important tags in your PPT also. तो इससे क्या होगा, ये फीडबैक हुआ पॉजिटिव फीडबैक फॉर द पॉजिटिव परफॉर्मेंस। इससे बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा कि मैंने जो पीपीटी बनाई थी वो कैसी थी, अच्छी थी। व्हाट वाज गुड इन दैट, कि जो पिक्चर्स मैंने डाले थे वो अच्छे थे, और जो मैंने जो टैग्स है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको मैंने जो हाईलाइट करके अलग कलर दिया वो अच्छा था। तो बच्चे को क्या समझ में आता है कि उनका कौन सी चीज में स्ट्रेंथ है। इमीडिएटली सी इज गिविंग अफर्मेटिव फीडबैक कि आपका वॉल्यूम अच्छा था, बट इट कुड बी लाइक थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज मेनी अ टाइम आप जब बोल रहे थे तो बच्चे को समझ में, तो उसने वो वर्ड के साथ उनको बोला कि कौन सा वर्ड स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो ये फीडबैक क्या हुआ, डेवलपमेंटल फीडबैक हुआ, है ना, कि वो समझा रही है। सिंपली ऐसा नहीं बोला कि यू नीड टू इम्प्रूवमेंट इन योर वॉइस, व्हाट शी सेड दैट, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आया था। जैसे जैसे आपने ये सेंटेंस बोले, वो सेंटेंस के वक्त आपका वॉल्यूम थोड़ा लो जा रहा था, उसको थोड़ा हाई। एक्चुअली ये कल ही रिकॉर्ड किया था, तो मैंने आज सुबह टेस्ट भी किया, मेरे में अच्छा चल रहा था, पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा। अदरवाइज द वे शी इज गिवन द फीडबैक, यू कम टू नो दैट हाउ द फीडबैक शुड बी गिवन, डेवलपमेंटल फीडबैक कैसे दिया जाता है ना। सो डेवलपमेंटल फीडबैक का मतलब ही यही है कि स्टूडेंट को समझ में आए कि वो कैसे अपने परफॉर्मेंस को डेवलप कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। क्लियर। तो वो टीचर को ये सीखना जरूरी है कि हाउ टू गिव द डेवलपमेंटल फीडबैक टू द स्टूडेंट। क्लियर। अगर कोई मुझे कभी टाइम मिलेगा तो ये इसको मैं थोड़ा एडिट करके आपको वापस से यही वीडियो दिखाऊंगी, सो यू विल कम टू नो। दो पर्पस था मेरा ये वीडियो दिखाने का। वन इज you come to know that how to give the both affirmative feedback, developmental feedback, oral feedback she is giving, and we are writing in one page also। हम पेज में भी लिखते हैं जो लास्ट में हम उनको देते हैं, और साथ में ना ये ग्रेड भी देते हैं। आप भी ग्रेड दोगे आपके फ्रेंड को, जब आप सिमुलेशन दोगे ना तो 10 में से आप भी ग्रेड दोगे। तो वो पीयर इवैल्यूएशन हुआ, तो मुझे वो भी दिखाना था कि हाउ पीयर इवैल्यूएशन इज गोइंग ऑन। और मैनी अ टाइम जैसे कि हम व्हाट आई डू कि जब वो बच्चा लेसन दे रहा है, वी रिकॉर्ड दैट लेसन एंड we will give that recorded lesson to that particular student. Now go at the home and see the whole recording and you yourself reflect कि आपने क्या अच्छा किया था, आपकी कहाँ गलतियां हुई थी। तो ये किस टाइप का इवैल्यूएशन हुआ, सेल्फ इवैल्यू, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो एक्चुअली बीएड में तो हम ये सालों से कर रहे हैं, है ना, बट जब आपका सिमुलेशन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पीयर इवैल्यूएशन। बट द थिंग इज दैट व्हेन यू गो टू स्कूल, है ना, तो देयर इट्स अ ड्यूटी ऑफ द टीचर आल्सो टू इम्प्लीमेंट both the evaluation, formative evaluation, summative evaluation, take the help of peer evaluation, है ना। सेल्फ इवैल्यूएशन भी वहां पे होना चाहिए, समेटिव इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, एंड फीडबैक भी वहां पे होना चाहिए। सो ये जो प्रैक्टिस है इन ईच एंड एवरी बीएड कॉलेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गिविंग द फीडबैक, डूइंग द पीयर असेसमेंट एंड डूइंग द सेल्फ असेसमेंट, and that actually I want to show you in this last lecture of unit 2. I don't know why this video is not working properly. मैम Yes मैम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो ना ग्रुप में? हाँ मैम, देखती हूँ मैं, because to share in the WhatsApp, and I have to do some editing work in that. अभी ये मेरा प्रॉपर्टी है, जैसे ही व्हाट्सएप पे चला जाता है ना, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट द सोशल मीडिया, एंड दिस इज द वन प्रॉपर्टी which we have created for this purpose only. So many a times what happen, if it is forwarded, it may be misused by some of the like I don't know, but for that I have to do some editing, then only I can share in the WhatsApp group. Okay, or else कभी मुझे चांस मिलता है तो I will definitely show this video. ठीक है,
So here I am completing with our मैम unit आप 2. सिर्फ ऑडियो भी शेयर कर देना। वो वही उसके लिए भी मुझे ना वीडियो जो एडिटिंग टूल है उसमें जाके ही वो ऑडियो शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे एडिटिंग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। हेलो मैम। यस मैम हेलो यस ma'am, I have one doubt that you said Khushi. Summit Khushbu. Ma'am, actually, I don't know why my name is not occurring in over there, and my email Yeah, ID. here is appearing like Khushi Sa. Yes, ma'am. Ma'am, one doubt is that you said that summative assessment is formative. It is a subset of formative assessment. See, in my first lecture, I told you that with the Ma'am, I am help. a sorry, Yes. ma'am. I'm a new student, and today only I have joined. So, ma'am, previous lectures I don't know. That's So why. you just for that you need to read that PPT, Khushi, because it's a long process. I have to explain each and everything for that, because you need to understand the concept of the formative assessment and the summative assessment. So you just go through the PPT. I have already uploaded in the Microsoft Team. है ना? Okay. Okay, ma'am. I'll share Hello, one ma'am. video tutorial also about this formative assessment and summative assessment also. Okay, ma'am. And just go through it, Khushi. Okay. Otherwise, it will take another 1 hour or 2 hours to explain all these concepts. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, just I want to ask that you said one statement. Formative statement is a summative statement is a part of format. Is that true? Is a part of formative statement? No, I didn't Formative understand. use of summative assessment. मैंने बोला formative use of summative assessment. Okay, okay. That doubt I had. हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि formative assessment और summative assessment एक दूसरे से related नहीं है. Actually, with the help of formative assessment, we can improve the performance and the result of summative assessment. And this is what I have already explained the students in my earlier class कि formative assessment से धीरे धीरे कैसे बच्चे का performance improve होता है ना, how it affect to the summative assessment. ठीक है. So this is my last class about this unit 2. Our unit 2 Hello, is ma'am. over here. Yes. मैम मेरा ये डाउट है कि रिंकी, हाँ बोलो रिंकी. मैम एनसर्किंग द मिस्टेक ये हमारा कौन से टाइप में आएगा फीडबैक में? कौन सा? जो आपने बताया था ना एनसर्कल हम करते हैं मिस्टेक को, टीचर्स करते हैं. वो एक्चुअली डेवलपमेंटल फीडबैक में जाएगा और वो थोड़ा रिटर्न फॉर्म में भी जाता है. वाई एनसर्कल करके अगर छोड़ दिया, रिंकी ध्यान से सुनना, अगर गलत चीज को एनसर्कल करके छोड़ दिया तो दैट इज ओनली अफर्मेटिव फीडबैक के बच्चे को इतना पता चलता है कि मैंने कहाँ पे गलती की. अगर हमको इसको इम्प्रूव करना है तो ये गलती की जगह जैसे कि गलत चीज लिखी है वहां पे, तो वहां क्या आपने गलत लिखा, दैट मीन्स कुछ तो सही होना चाहिए था वहां पे. एंड इफ यू आर राइटिंग दैट थिंग्स ओवर देयर, दैट मीन्स इट इज डेवलपमेंटल फीडबैक. ओके मैम. For example, many a time like when we are checking the answer sheet of our students, we actually use these things. हमको actually I तो do it कि जहाँ पे जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, बच्चे ने कुछ और लिख दिया है, तो हम नीचे एक नोट छोड़ते हैं कि you have written these things. I have asked the objective. है ना? तो ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा है और बच्चे ने यूजेस लिखा है ना, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने जो लिखा वो क्या चीज है ना. तो हम नीचे नोट छोड़ते हैं कि यू हैव रिटन द यूजेस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर टीचर. आई हैव आस्क्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच इज कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. क्लियर रिंकी? यस मैम. तो ये फीडबैक कैसा हुआ? डेवलपमेंटल फीडबैक. बच्चे को पता भी चल रहा है गलती कहाँ पे है, उसको कैसे सुधारी जाती है. क्लियर? ओके मैम.
यस मैम, बट मैम अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो नाउ डेज ये हम प्रैक्टिस क्यों नहीं की जा रही है, मतलब वो हायर करनी ही जो चाहिए, वो क्लासेस होते हैं करनी ही चाहिए, वो करनी ही चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते तो मैम बिकॉज एनफोर्स अगर क्यों नहीं हमारी किया क्लास जा रहा? in my very class I told you that कि students, ये teachers क्या करते हैं, they are all focus on the summative assessment only, they are focused, पूरा teaching exam oriented है ओके मैम, है ना, और गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड दिस, बट व्हाट हैपन, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी ग्रेड के साथ अटैच कर दिया है स्कूल वालों ने, यस मैम, एंड दैट इज द मिस्टेक व्हिच इज डन बाय, क्योंकि जैसे ही आप असेसमेंट को ग्रेड के साथ अटैच करते हो, बच्चा का कॉन्शियसनेस कहाँ पे हो जाता है, मार्क्स मार्क्स ग्रेड है ना, और उनको 8 मिले, 9 10 में से आपने 9 दे दिया, दे आर लीस्ट टू अदर के उसको 9 क्यों मिले हैं, 9 मिले ना, Yes, खुश हो गए, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे उसको 4 भी मिल सकते हैं, इफ ही और शी इज नॉट कम टू नो कि उसने क्या अच्छा किया था. So this is advisable that attach the formative grade with the formative assessment with the grade. और उसीलिए मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट जब पढ़ाया था तब बोला था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस ही फीडबैक देना होना चाहिए. क्लियर? एक्चुअली स्कूल इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग, बाकी सीबीएसई ने या गवर्नमेंट ने तो लगभग 10 ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए होंगे एफए, आप स्कूल में ना टर्म यूज होती है एफए ऐसे, और Yes, एफए ma'am. को भी 10 Yes, मार्क के ma'am. साथ अटैच कर दिया है. FA1 FA2 हाँ बस FA1 FA1 FA2 और उसमें भी 10 मार्क 15 मार्क, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. क्लियर? Yes, ma'am. So unit 2 is over. From the next class we'll begin with the unit 3 and Anpurna ma'am will take your class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Till you have any Okay, ma'am. query regarding unit 2, you can write like chat box में आप लिख सकते हो या कभी भी पूछ सकते हो, आपकी यूनिट 2 या यूनिट 1 किसी भी कैरी हो, क्योंकि 2 यूनिट खत्म हुए हमारे, है ना. एंड पूरा सब्जेक्ट Yes, ध्यान से देख, जो आप यूनिट 1 में पढ़े हो आपने देखा कि वो इट इज लिंक्ड विद द यूनिट 2, है ना. 2. जो आप Yes, ma'am. 2 में पढ़े हो वही लिंक होगा साथ, और जो यूनिट 3 में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि यूनिट 3 का यूनिट 4 में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना. जब आप 4 यूनिट में जाओगे ना तब आपको चारों यूनिट का मैम रिवाइज कराएंगी कि आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है. सो अपना ईच एंड एवरी यूनिट इज लिंक्ड, ठीक है. सो मैं यहाँ पे Yes, एंड ma'am. करती हूँ अभी अपना क्लास, बिकॉज वी हैव द नेक्स्ट क्लास विद द BEd 1, सॉरी BEd 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट. बाय एवरीवन. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. If you Bye, have ma'am. any Thank you. query, you can ask at any time. Okay. Ma'am, Okay, PDF ma'am. download कर ली Okay. क्या?